जामा मस्जिद सैयद शुहदा है, और वो सामने जो आपको छोटी सी चोटी नज़र आ रही है, ये वो चोटी है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज जो माहिर असहाब थे उनको तैनात किया था, और उस तरफ से मुशरिकीन आ रहे थे। ये वो जगह है और ये उहद की पहाड़ी है। وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون। ये सारा मैदान जंग था उस वक्त। और वो सामने जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये वाली, ये यहाँ पर बाकी असहाब की कब्रें मौजूद हैं, जिसमें हज़रत हमज़ा, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनकी कब्र की निशानदेही की हुई है, और बाकी असहाब की एक साथ कब्रें। किस तरह ये वो पॉइंट है, ये ओहद हिल है पूरी, और ये ओहद का दुर्रा है। मुसलमानों का लश्कर किस जगह पे था? यहाँ पर इनके पास बैक पे ओहद था, और इस जगह का इन पर एडवांटेज ये था कि यहाँ पर 50 सहाबा खड़े हुए थे, तो जो लश्कर आया वो उस तरफ सामने से आया और जंग यहाँ बीच में हुई। यहाँ से मुसलमान जब तीर बरसा रहे थे उनके ऊपर, तो मुसलमानों के पास एडवांटेज था, जिसकी वजह से कुफार पीछे हट रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर से अटैक हो रहा था। मुसलमानों की पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, वो पीछे हटते चले गए और वो काफ़ी पीछे चले गए। और जब यहाँ पे मुसलमान जो खड़े थे ऊपर साहबा, जब उन्होंने ये देखा कि कुफार पीछे हट रहे, तो उनको लगा कि हम शायद जंग जीत गए, और वो यहाँ से नीचे उतर गए, जिसमें से 35 साहब नीचे उतर गए और 15 ऊपर रहे। तो यहाँ पे मुसलमानों की पोजीशन वीक हो गई। खालिद बिन वलीद इस वक्त जब मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने इस पीछे के एरिया से इस आर्चर लेके बैक फिर यहाँ पर पूरा टर्न लेके वो आए, यहाँ पर जो मुसलमान यहाँ पर मौजूद थे पीछे से अटैक किया, और साथ इस ही जगह यहाँ पर हिल पर जो साहबा खड़े थे उनके ऊपर अटैक करके उनको शहीद किया। और उधर से उनकी भी उधर से यहाँ से भी मुसलमानों पर अटैक हुआ। यहाँ पर जो कुफार खड़े, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों की पोजीशन अब वीक हो गई है, तो उन्होंने फिर दोबारा से मुसलमानों पर अटैक किया। तो इस तरह मुसलमान दोनों तरफ से घेरे में आ गए। और कितनी शहादत हुई थी मुसलमान? 70 सहाबा इकराम यहाँ शहीद हुए थे। 70 सहाबा इकराम शहीद हुए थे इस जंग में। इधर के लोकल अरबी कुछ बता रहे हैं। هذا يوم أم أيمن دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا رهيبا شديدا، يعني كذلك باقي المسلمين. يعني كان في أحد الصحابة مش متذكر اسمه الآن، أصبح كالقنفذ من كتر السهام التي دخلت فين؟ في جسده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ضربوا بسيفهم رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشجت رأسه وكسرت رباعيته، الرباعية اللي هي السنان الأمامية، ودخل المغفر من كتر الضرب في وجنتيه، وكان الدم بينزل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر، لا شلت ايه بقى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحاجة بتدعو عليه شلت يداهم اهو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يمسح ويقول ايه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هم مش عارفين ان هم بيقاتلوا نبي. في حادثة تمت برضو في شهيرة يعني في غزوة أحد، ان واحدة اللي هي مرات أبو جهل
مرات ابو سفيان اللي هي هند بنت عتبة، قالت لواحد عبد عندها اسمه وحشي، قالت له ايه؟ قالت له لو قتلت حمزة انت حر واحد وسأعطيك اموالا كثيرة. فوحشي هو ملوش في الحرب، يعني ملوش يعني ولا ناقة ولا جمل في الحرب، ولكنه اتى من اجل هذا فجاي معاه حربة وكان لا يخطئ بها ابدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ان دخل في الاسلام، قال له اخبرني كيف قتلت اخي حمزة؟ قال ذهبت من اجل المال فنظرت في الجيش حتى عرفت اين هو، اين حمزة يعني، فظللت انظر اليه واتتبعه وهو يدك في الجيش دكا، قاعد يضرب بالسيف بتاعه يدك، وقيل سيفين، كان معاه سيفين يعني، يدك في الجيش دكا. ثم انتهزت فرصة وهو قادم ولم يراني فألقيت الحربة عليه فدخلت من تحت سرته فخرجت من خلفه. كانت حربة شديدة فاتكأ عليها حمزة رضي الله عنه وارضاه، ثم نظر إلي نظرة الأسد، وكدت أخاف إنه يأتي إلي ويقتلني بهذه الصورة، فمشي خطوة أو خطوتين ثم لم يتحمل فوقع، ثم أتت هند فشقت بطنه كويس، لا ما قدرتش اللي هي تاكل الكبد، وحتى لو اكل الكبد ما اكلتش الكبد هو خلاص ما يفعل بالشاه، سلخوها بعد ذبحوها خلاص، هو قتل رضي الله عنه وارضاه. هذه القتلى هم عايزين يمثلوا، عشان كده انت لما تسمع ان هم مثلوا بالجثث بعد القتل 70 واحد قتلوا في المعركة، مثلوا بهم، كانوا بيقطعوا ودانهم ومناخيرهم ويعلقوهم على صدرهم، غل وحقد وكراهية. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر بعد ذلك في الغزوات، المسلمين عايزين يعملوا ايه؟ زيهم، انتقام بقى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ديننا، احنا ماشيين بدين ورحمة حتى في القتل، يعني لما ابو دجانة رضي الله عنه وارضاه كان في غزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يقاتل به حتى ينحني، يعني حتى ينحني السيف. فقال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فأخذه أبو دجانة وربط العصابة الحمراء وبدأ أن هو يدخل في الجيش، وكان له خطوة كده فيها الكبرياء يعني في هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، إلا في وقت القتال. ثم دخل ليقاتل الكفرة، قاعد يقاتل حتى وصل إلى النساء، فيقول فاستحيت أن أقتل بهذا السيف امرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتصروا في برضو من الحوادث التي تقوم فموتوا على ما مات عليه رسول الله، فدخل المعركة فقاتل فيها فقتل، قتل حتى أن أخته لم تعرفه إلا بإصبعه، قالت ده إصبع أخويا، يعني قطعوه. تخيل أنت بقى، وهو الذي نزل في حقه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ये बता रहे थे वो सारा मंज़र कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांतों पर ही शहीद हुए, फिर हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली रिसाला अन्हुमा ट्वीट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खून ही रुक रहा था। हज़रत फ़ातिमा ने जो है वो रुई को जला के जो है ना वो रखा दांत मुबारक के ऊपर ताकि वो खून बंद हो। और यहाँ पर एक और सहाबियों की कब्र भी मैं दिखाता हूँ आपको, उनका नाम था हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी शक्ल जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत रिजेंबल करती थी। तो जब उनको शहीद किया गया तो ये बात मशहूर हो गई कि तो उनकी भी कब्र यहाँ मौजूद है। और ये उनकी कब्र है, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये दूसरी कब्र मुबारक मौजूद है
या तो ये बाकी असहाब की एक जो इज्तिमाई कब्र है वो है, और वो जो पहली कब्र मैंने दिखाई थी वो हज़रत हमज़ा और हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की है, या तो ये हज़रत हमज़ा की है अल्लाहु आलम। लेकिन यही वो बाउंड्री है जिसके अंदर बाकी असहाब की कब्रें भी मौजूद हैं लेकिन निशानदेही नहीं की हुई। और ये सामने ही सैयद शुहदा मस्जिद जो है ये बनाई हुई है, उनका नाम भी, इस मस्जिद का नाम जो है वो भी सैयद शुहदा यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर है। हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो एलीट क्लास में से थे, यानी नौजवान थे, बहुत हसीन थे शक्ल सूरत के वाले से, और बहुत एलीट क्लास से उनका ताल्लुक़ था, बहुत समझ रिश्त थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया कि फ़ैमिली वालों ने उनको छोड़ दिया और उन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ जो है ना वो कुर्बान कर दिया। और ये वो वक्त था जब मुसलमान अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उनमें नहीं आई थी, और उन्होंने जो है वो अपनी जान तक दे दी अल्लाह ताला के रास्ते में। इस कब्रिस्तान में आप जाएं, कब्र की ज़ियारत करें, तो उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई हमें, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाहु लना व लकुमुल आफिया। ये मस्जिद क़िबलतैन है, वो मस्जिद जहाँ पर किबला चेंज हुआ था। मस्जिद अक्सा पहले जो किबला था उससे मस्जिद हराम की तरफ, खाना काबा की तरफ हुआ था, और यहाँ पर वो दो मेहराब भी मौजूद हैं। असर का टाइम था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी कि वो अपना किबला जो है वो चेंज कर दें। एक मुसल्ला तो आपको ये नज़र आ रहा है ना जो खाना काबा की तरफ है किबला, इससे पहले ये किबला था, और ऊपर आप देखें इसकी निशानदेही भी की हुई है। ये मुसल्ला था मस्जिद अक्सा की तरफ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फेस करके नमाज़ पढ़ा रहे थे, और असर की नमाज थी। नमाज के दौरान हुक्म हुआ कि आप अपना रुख जो है वो बदलें खाना काबा की तरफ। यहाँ पर ग़ज़वा ख़ंदक हुई थी, वहाँ मस्जिद बना दी गई, अभी इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इधर आगे छोटी छोटी मसाजिद भी मौजूद हैं, उधर आप जो है वो थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरह की। तो ये वो मैदान था जहाँ पे ग़ज़वा ख़ंदक हुई थी सन 5 हिजरी में। ये मस्जिद क़माम है, और ये वो मस्जिद है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्क़ा और ईदैन की नमाज़ पढ़ाया करते थे। नजाशी का गायबाना नमाज जनाज़ा भी यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। हम खजूर मार्केट में आए हैं, सुखरी खजूर है, एक हफ्ते से 2 हफ्ते रुकेगा, ये 2 साल शायद अंबर है, अजवा है। हम सब के पैकेट बन गए खजूरों के, अच्छी शॉप है। للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون
بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا ये मस्जिद कुबा जाने का सुन्ना ट्रैक है। ये वो रास्ता है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जाया करते थे। इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटनिंग की है। आसपास आप देखें हर चीज़ की दुकानें मौजूद हैं, सस्ती महंगी परफ्यूम्स, अबाया, जुब्बे, किसी को गिफ्ट देनी है, तस्बीहात। और ये शटल सर्विस है। وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل माशाल्लाह माशाल्लाह हबीबी हबीबी कम टू मदीना अमीर मोहतरम कासिम ये मस्जिद कुबा है, इस्लाम की पहली मस्जिद। ये हदीस भी है, फ़ज़्लु सलाती भी मस्जिद कुबा, कुबा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फजीलत। मन तहरा फ़ी बैती सुम्मा अता मस्जिद कुबा फ़सल्ली फ़ीही सलात काना लहू का अजरा उम्रतिन, कि जो कोई भी जो है वो वज़ू करे तो मस्जिद कुबा है तो यहाँ पर 2 रकत नमाज़ पढ़ने का सवाब जो है वो एक उम्रे के बराबर है। فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا जहाँ उस म्यूज़ियम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जहाँ पर प्ले कर रहे हैं।
गुजारिश है अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर लीजिए प्लीज। और हमारा कुछ अगर 35 से 40 मिनट का होगा अभी किस स्टैंड बाई के पास मुख्तलिफ चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूज़ होती रहीं। जंग में जो हेलमेट यूज़ होता था, ये लेदर का बैग है। ये भी जान माज के तौर पे या कुछ चीज़ें रखने के लिए। ये वो मुद है जिस तरह हम लीटर यूज़ करते हैं, तो ये नापने के लिए। मर्द भाई आप पीछे तशरीफ ले जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी और बादशाह। वो नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। तारीख की सबसे अजीम शान ममलकत की बुनियाद रखी और इसे हक, इंसाफ और सलामती जैसे इंसानी उसूलों पर कायम किया। इसी तरह जिन्नों और शैतानों को भी उनके काबू में कर दिया था, जिनमें से बाज मेमार थे जो वो सारी चीजें तामीर करते जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता, तरीन मकसद की खातिर। उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। हज्जतुल वदा पे बुक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर। अहले बैत पर बुक। तो इस साइड से गोल्ड आ जाएगा। सेम ये मक्का का भी ऊपर दिया है। ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और इसका एंगल चेंज करेंगे तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन। इसी तरह मक्का के लिए ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और न्यू कंस्ट्रक्शन। खाना काबा की चाबी शरीफ। 5,000